أشهد أن لا إله إلا الله من آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفات توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر سانس لینے کا موقع عنایت فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں سانس لینے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کرتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو گمراہ شیطان کے ذریعے نہیں کروانا چاہتا ہے۔ سامعین، یہ بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ سامعین، اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے رمضان المبارک کے آنے کے انتظار میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس رمضان میں روزے رکھ کے، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کر کے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتے تھے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے سلسلے میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آتے ہیں، اور دونوں آدمی بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان 2 اشخاص میں سے ایک شخص ایسا ہے جو عبادت گزار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے شہید بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص اتنا عبادت نہیں کرتا اور وہ عام موت مرتا ہے۔ سامعین، میرے بتلانے کا مطلب اس حدیث سے یہ ہے کہ رمضان کیا ہوتا ہے۔ دوسرا شخص عام موت مرتا ہے لیکن پہلے شہید شخص سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ سامعین، ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا شخص جو زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، وہ عام موت مرا تھا لیکن شہید آدمی سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے بیان کرتے ہیں اس بات کو، لوگ تعجب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا وہ شخص شہید آدمی کے بعد 1 سال بعد نہیں مرا؟ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے اور سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا۔
اس لیے ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جنت میں جانے کا جتنا آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سامعین، رمضان المبارک کی یہ قدر و منزلت ہے کہ ایک شخص شہید بھی ہوتا ہے، زیادہ عبادت گزار بھی ہے، لیکن پھر ایک عام آدمی ایک عام موت مرتا ہے، لیکن وہ بھی عبادت کرتا اس شخص کی طرح نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے وہ شہید آدمی سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ سامعین، یہ ہے اسلام کی خوبی، اور یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے رمضان المبارک کی قدر و منزلت۔ سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین، تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم عام دنوں کی طرح اس دنوں کو بھی گزارے نہیں، عام مہینوں کی طرح اس مہینوں کو بھی گزارے نہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہ رمضان المبارک ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر کیے ہوئے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے اس کے اجر و ثواب کو پیش کرتا ہے۔ سامعین، یہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس رمضان المبارک کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں؟ اپنے گاڑھی کمائی سے رمضان کے اندر کھانے پینے اور وہ دسترخوان پر عجیب و غریب کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کرتے ہیں؟ نہیں سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری دیتے تھے کہ آتاکم رمضان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ سامعین، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنے ماننے والوں کو اس رمضان کے اندر گائیڈ کیا کرتے تھے کہ فرض اللہ علیہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے کے فرض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہے، عاقل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ وہ تغلق فیہ مردۃ الشیاطین، اور اسی طریقے سے شرک الشیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ لَيْلَةٌ، کہ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فقد حرم خیرہا، فقد حرم خیرہا، فقد حرم، کہ جو شخص اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ شخص دراصل محروم رہ گیا۔ سامعین، اس حدیث کو بتلانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، وہیں جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بندوں کو یہ شرک الشیاطین بھٹکا نہ سکے، تاکہ اس مہینے کے اندر عبادت و ریاضت کے اندر لوگ مشغول ہو۔ آپ دیکھتے ہیں اور مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر کس طریقے سے وہی لوگ ہیں، وہی گاؤں ہے، وہی محلہ ہے، وہی نام ہے اس آدمی کا، اور دنوں کے اندر مسجد سے کوسوں دور اور نہ جانے کہاں کہاں رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہی شخص پہلی صف کے اندر دکھتا ہے۔ سامعین، یہ رمضان المبارک کی برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے اعمالوں میں سے
सबसे बेहतर अमाल कौन सा है? ये रोजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की नीयत रखते हुए अगर रोजा रखता है सवाब की उम्मीद से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को, पिछले सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई मजहब या ऐसा कोई दीन है जो इस बात की गारंटी लेता हो कि ये काम करने पर अल्लाह तबारक व तआला या उसके मानने वाले खुश होंगे, उसे जन्नत का परवाना दिया जाएगा? शायद ही कोई दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मजहब नहीं दिखता होगा। सामीन कराम, यही वो रमजानुल मुबारक का रोजा है जिसके सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर बतलाई गई, 5 पीलर बतलाए गए, उसमें से एक रोजा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 पीलरों में से एक रोजा को भी रखा। इसलिए हमें ये जरूरत है कि इस महीना के अंदर रोजा का एहतमाम करें। इसी तरीके से इस महीना के अंदर अगर हम इस बात तक पहुंचते हैं कि इस महीना को पाने के बाद अगर हम अल्लाह को खुश नहीं किए, वही रवैया जो आम दिनों के अंदर रहा, तो फिर इस रमजानुल मुबारक के इस बरकत महीने से हम महरूम रह जाएंगे। जैसा कि हमने उस हदीस के अंदर बतलाया कि जो शख्स इससे महरूम रह गया दरअसल वही महरूम है। महरूम का मतलब क्या है? सामीन, उसके फयूज व बरकत और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम इस महीने के अंदर बतलाया है उससे वो शख्स महरूम रह गया। सामीन, इसी तरीके से रोजे का अज्र क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। 12 सुनते हैं इस बात को कि रोजा मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा और मैं ही उसका बदला दूंगा। देखिए, नमाज हम पढ़ते हैं, फरिश्ते हमारे साथ है, वो नोट करते हैं। ज़कात देते हैं, फरिश्ते हमारे साथ है, वो नोट करते हैं। लेकिन रोजा का मामला नीयत से होता है, जबकि नीयत के मामला को फरिश्ता नहीं जान सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस के अंदर कहा कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। नियत कर लेता है आदमी, खा भी सकता है लेकिन अल्लाह के डर से खाता नहीं है। वो सारी चीजें मुहैया होती है लेकिन खाने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होती है। किसके डर से? अल्लाह के डर से। किसके खौफ से? अल्लाह के खौफ से। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी है जो इस बात को मानने के मुतकाजी नहीं कि इस महीने का रोजा रखा जाए। सामीन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो रोजा रखते हैं रोजादारों के लिए 2 खुशियां हैं कि लिस्सियाम फरहतान यफरहुमा, के रोजादारों के लिए 2 खुशियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अफ्तरा फरिहा, जब शख्स इफ्तार करता है तो वो खुश होता है। उसी तरीके से दूसरी खुशी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाई कि वइदा लकिया रब्बहु फरिहा बिसौमिही, वो रोजादार जो दुनिया के अंदर रोजा रखा करता था वो अल्लाह तबारक व तआला से जब कल क़यामत के दिन मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा तो कितना खुश होगा। हर जन्नती का, हर एक मुसलमान का मरने के बाद कल क़यामत के दिन सबसे जो पहला मंशा होगा और सबसे जो पहली ख्वाहिश होगी वो होगा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। तो इसी तरीके से रोजा रखने वाला शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। सामीन, इसी तरीके से हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम जुन्नतुन, रोजा ढाल है। हम लोग ढाल समझते हैं लड़ाई के अंदर पहले तलवार से जो लड़ाइयां की जाती थी, एक हाथ के अंदर तलवार, दूसरे के हाथ के अंदर दूसरे हाथ में ढाल होता था ताकि तलवार के वार से बचा जा सके। उसी तरीके से ये रोजा है, ये रोजा रख करके हम अपनी ख्वाहिशात को तोड़ सकते हैं। 12 आप किसी के निकाह के मुनासबत से ये सुनते होइएगा कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज
फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। नौजवानों को ये नसीहत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ या माशर शबाब, कि ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, कि अगर तुम्हें इस्तिताअत है, तुम्हारे पास ताकत है, तो तुम शादी करो। फइन्नहु अगज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि वह निगाहों को नीचे रखने वाली चीज है, वह अहसनु लिलफर्ज, और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली है। अगर ये सारी चीज ना हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका उपाय बताया, वह अलैहि बिस्सौम, कि रोजा रखो, इसलिए कि रोजा शहवत इंसानी को खत्म करता है। रोजा का ये फायदा है। सामीन कराम, वह रोजादार जो रोजा रखते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में एक स्पेशल दरवाजे से दाखिल होगा। हम सब आदमी जानते हैं कि उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान होगा। दूसरे लोग उस दरवाजे से चाह करके भी दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न फिल जन्नति बाबन, कि जन्नत के अंदर एक दरवाजा है। उस दरवाजे के सिलसिले में कहा युकालु लहु अर्रैयान, उसे रैयान कहा गया है, बाबुर रैयान कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युदखलु मिन्हु अस्साइमून, उससे सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। आगे अल्लाह के रसूल ने कहा कब दाखिल होंगे? यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन। सामीन, ये इस दरवाजे से दाखिल होना वही खुश नसीब होंगे जो रोजे से होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, दूसरे लोग उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकते हैं। युकाल, कहा जाएगा ऐन साइमून, कहाँ है रोजेदार? रोजेदारों को पुकारा जाएगा। सामीन, आगे अल्लाह के रसूल ने कहा फयकूमु, वो रोजेदार खड़े होंगे और उस दरवाजे से दाखिल होने लगेंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उस दरवाजे से दूसरे लोग दाखिल नहीं होंगे। फइदा दखलू, जब रोजेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे कि तो उसके बाद अगलिक फलम यदखुल, कि उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, उससे दूसरा दाखिल नहीं होगा। सामीन कराम, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। ये कोई हमारी और आपकी गढ़ी हुई बात नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के जरिए से रोजेदारों को खुश होने और बशारत दी है कि रोजेदारों, इस दुनिया के अंदर जो इन तकलीफों को उठाते हो, इसके बदले में तुम्हें कल कयामत के दिन क्या मिलने वाला है। सामीन, ये रोजा एक इंसान के लिए कल कयामत के दिन सिफारिश भी करेगा। कल कयामत के दिन कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, देखने और सुनने वाला तक नहीं होगा। माँ बाप भी मुकर जाएंगे कि मेरी औलाद कोई होगी। उस दिन ये रोजा कल कयामत के दिन आपके हक में सिफारिश करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सियाम वल कुरान, सियाम यानी रोजा और कुरान, यशफान लिल अब्दी यौमल क़ियामह, कल कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों और अपने रोजा रखने वालों के हक में दुआएं खैर करेंगे। यकूल वस्सियाम, के रोजा कहेगा ऐ रब्बी, ऐ मेरे रब, मनातुहु ताम, मैंने इसे खाने पीने से रोका था, वश्शहवा, और शहवत इंसानी से रोका था। रोजा कहेगा इसी तरीके से फशफ़्फ़िनी फीही, मेरी इसके हक में दुआ कबूल फरमा। ये रोजा और कुरान कहेगा। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वयकूनुल कुरान, कुरान पढ़ने वाला खुश हो जाए और उस पर अमल करने वाला के लिए भी इसके अंदर खुशखबरी है और बशारत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मनातुहुन नौम बिल्लैल, कि मैंने इसे रात में सोने से रोक रखा था। ये रात को जग करके पढ़ा करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस हदीस के अंदर कि कुरान फशफ़्फ़िनी फीही, ये अपने पढ़ने वालों के हक में अल्लाह तबारक व तआला से शिफाअत करेगा। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि काल फयुशफ़्फ़अन, इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। ये गारंटी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हमारी और आपकी गढ़ी हुई और बनाई हुई और किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि उन रोजेदारों और कुरान के पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अलग ऐलान है। जो लोग इसे रखते हैं हूबहू अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक इन इबादत को
अपनी जिंदगी के अंदर बरतते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज वह दिन दूर नहीं कि मरने के बाद ये खुशखबरियां, ये नेमतें और ये रहमतें हमें मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें इन नेमतों का और इन नेमतों का कल क़यामत के दिन पाने वाला बना दे। सामीन, इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आते हैं और कहते हैं कि अय अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बतलाइए कि जिसके जरिए से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। कोई शख्स आजकल पूछने वाला है, उसी बात को किसी से पूछता है जिसको जानता हो, ताकि मुनी साहब को आजमाए कि कितने पानी में है। सामीन, सहाबा किस तरीके से अपने सिलसिले में और लोगों के सिलसिले में फिक्रमंद हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से क्या कहा था कि ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैया, कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। व तुकीमस सलातल मक्तूबा, और फर्ज नमाज की अदायगी करो। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व तूती ज़कातल मफरूज़ा, और ज़कात जो तुम्हारे ऊपर फर्ज है उसे अदा किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया व तसूम रमजान, और रमजानुल मुबारक का महीना आए तो उस महीने का रोजा रखा करो। सामीन, इस हदीस के अंदर जो नमाज पढ़ने की बात कही गई है, उसी तरीके से ज़कात देने की बात कही गई है और रोजा रखने की बात कही गई है। यही वह रमजानुल मुबारक है कि जिसके अंदर ये जान लीजिए कि हमारे बहुत से अफराद हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर सहरी के अंदर और इसी तरीके से अफ्तार में साथ हुआ करते थे। वह आज मनो मिट्टी तले दबे हुए हैं, आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सामीन कराम, उनके लिए अपने दुआओं में खैर और उम्मीद की जिला बख्शिए और उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रमजानुल मुबारक के सिलसिले ही में कहा था, जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उनके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, कि जो शख्स इस महीने के अंदर खुसूसन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की किताब यानी कुरान कलामुल्लाह की तिलावत करता है और उसी तरीके से फलहु बिही हसनतुन, और उसके लिए इसके अंदर क्या है, नेकियां है। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और हर नेकियों का सवाब उसको बढ़ा कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, ये 3 जुमला है और 3 हर्फ है और 30 ने किया है। इसी तरीके से ये रमजानुल मुबारक के सिलसिले में मैं एक बात और ये कहता चलूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 शख्स आते हैं। उन लोगों के लिए बड़ी नसीहत है जो हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी इस माह मुबारक के अंदर दनदनाते और खाते पीते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए होते हैं, अल्लाह के रसूल को जगाया जाता है और दोनों बाजू को पकड़ करके 2 आदमी उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल चलिए। अल्लाह के रसूल चलते हैं, एक पहाड़ी पर चढ़ाने की बात आती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा। वो दोनों शख्स कहते हैं, वो 2 अफराद कहते हैं कि आप चढ़िए, आपके लिए चढ़ना हमवार हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी पर चढ़ते हैं, बालाई हिस्से पर जाते हैं, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार की आवाज सुनते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह के रसूल को ये जवाब मिलता है कि ये जहन्नमी लोग हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे जाने के बाद और बालाई घाटी पर ये देखते हैं कि एक कुछ अशखास है, कुछ आदमी है जिन्हें उल्टा लटकाया गया हुआ है और उनके जबड़ों को चीर दिया गया है जिससे खून बह रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह के रसूल को ये जवाब मिलता है कि ये वह लोग हैं जो रमजानुल मुबारक के अंदर खाया पिया करते थे। सामीन, शर्म की बात है कि एक मुसलमान होने के नाते इस महीने के अंदर जिसके
बरक़ात व फ़यूज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस की जीनत बनाया है। और बारहा इस महीने के अंदर इस बात को सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे कानों पर जू नहीं रहेंगे तो जान लीजिए इस महीना के अंदर जो लोग ताकत रखने के बावजूद भी रोजा नहीं रखते, उनका हश्र ये होने वाला है। सामीन, जो बीमार है, जो मरीज है, जो सफर पर है, तो उसके लिए रुखसत है, लेकिन जो रोजा है, जो हट्टा खट्टा है, उसके लिए रोजा रखना निहायत ही जरूरी है। हमें इन कुरान हदीस और अहादीस मुबारका से ये बात हम तक पहुंचती है कि हमें इन महीनों के अंदर बिला उज्र कोई भी शख्स इस महीने के अंदर रोजा से गफलत न बरते, इसलिए कि इसका अंजाम हमारे सामने बयान किया जा चुका है। अगर इसके बाद भी हम होश के नाखून न ले तो जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ क्या हश्र करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में ये दुआ करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात को अपने दामनों के अंदर समेटने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमसे जो गलतियां सरजद हुई, या इलाहुल आलमीन तू उसे माफ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे पूर्वज, हमारे आबा व अजदाद, हमारी माएँ और बहनें जो कल तक हमारे साथ थे और थी, या इलाहुल आलमीन वो गुजर गए हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु वहुवल गफ़ूरुर रहीम।